Welcome back, guys. I hope you will be all fine, and hopefully, you understand our previous lecture, the theory of week one. So, as you know, we have started our week one, and in previous lecture, we discussed all about the theory section, and in this section, we will read about the Linux commands, and then we will do the practice. So if you are new here and you skip the previous video, I add the link of that video in the description. First you see that one, and then you come here if you want to follow this playlist. So subscribe this channel and like this video and share with your friends and comment below. I started this course. So first of all, as you know, the Linux is a command line interface, and for doing any operation we can perform by the commands. तो आपको जो कमांड्स हैं ये आपको ऐसे याद होने चाहिए कि अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आपको सोचना ना पड़े इसके लिए मुझे कौन सी कमांड्स रन करनी है। सबसे पहली बात ये क्योंकि आपको पता है लिनक्स एक कमांड लाइन इंटरफेस है। जब तक आपको कोई कमांड नहीं आती होगी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आपको अभी तो लगेगा ये कमांड्स जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, आपको इजी नहीं लगेंगी, बट लेटर ऑन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 1 वीक अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये कमांड जो है वो इजीली याद हो जाएंगी और आपको ये बिल्कुल स्कैरी नहीं लगेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहली कमांड है वो हमें ये बताएगी कि हु आई एम एंड वेयर डू आई गो। दीज कार्ड्स आर द नेविगेशन कमांड्स। सो फर्स्ट कमांड इज PWD। मैं साथ साथ आपको ये कमांड रन करके भी बताता जाऊंगा ताकि आपके लिए ये इजी रहे। आपके सामने यहाँ पे मैंने अपना जो लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो खोल लिया है, ओपन हो गया है। तो यहाँ पर जो भी अब मैं कमांड रन करूँगा तो आप देखें इस तरह का आपका ये कमांड लाइन इंटरफेस होगा जहाँ पर अपनी कोई भी आप कमांड्स रन करेंगे। ओके, मैं अभी आपको बताऊँगा आपने ये कैसे इंस्टॉल करना है और ये कमांड्स कैसे रन करनी है। तो सबसे पहली कमांड है PWD। जैसे ही मैंने ये लिख के इंटर प्रेस किया तो उसने मुझे क्या दिया है, /home/del। इट्स मीन दैट राइट नाउ आई एम इन this directory. So this command return us in the current directory where I am right now. So right now I am in the del folder, and if I want to know in this folder how many files in the del folder, so then I will write here the ls. So if I write down here the ls, I found a mlops journey, mean in this folder del I have a file named mlops journey. So this is not a file, this is a folder mlops journey. Then if I move further and I write down here ls minus la, and this return me in detail. uh, ls give us all files or folder in the current directory, and ls minus la list of all files including hidden files with details. uh, Here's are the some files which are hidden. I write down the ls, so that doesn't show here. But if I write down here ls minus la, then the all files show, like dot file, bash history files, dot bash logout file. These are all the files. So and in detail here all files permission are also showing here. तो ये पर जो कमांड ls-la है ये आपको इन डिटेल जो है आपकी फाइल्स की और जो हिडन फाइल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराएगी। और अगर मैं यहाँ पे एक और कमांड हमारी नेक्स्ट है ls-lh, तो ये आपको क्या बताती है, रिटर्न करेगी ह्यूमन रीडेबल साइजेस
यहाँ पे देखें इस फाइल MLOps जर्नी का फोल्डर है, इसका साइज जो है वो 4 KB है। तो यहाँ पे देखें आपको साइज जो है वो नहीं बताया गया था, लेकिन जब ls-la कमांड जो है ये आपको जो फोल्डर है नेक्स्ट इस डायरेक्टरी के अंदर उसका साइज भी रीडेबल वे में बताती है। अभी आपने 3 कमांड पढ़ी, pwd ls एंड द फोर्थ वन इज ls-lh। नेक्स्ट कमांड मेरी है कि राइट नाउ आई एम इन द डेल folder, and if I want to change my location, then you can use the cd command, cd, and if I write down here the mlops, next folder is mlops journey, and I write down here mlops journey and press enter. Now you can see here as well, I am in home folder, next in mlops journey folder. If I write down here pwd, so home del mlops journey, right now I am in the mlops journey folder. So इस तरह आप जो है अपनी फाइल की कोई भी अगर आप लोकेशन अपनी चेंज करनी चाहें और डायरेक्ट किसी और डायरेक्टरी में मूव होना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने प्रीवियस जो है ना वो मैंने बैक आना है उसी फोल्डर में जहाँ मैं था, तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट एंड इंटर प्रेस करूँगा, तो अब मैं रिटर्न आ गया हूँ इस फोल्डर से 1 स्टेप बैक जहाँ पे मैं था, लाइक हियर इन डेल फोल्डर। So if you want to go to the home folder, then you can write here cd and tiled sign। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप tiled sign is the shortcut of the home folder। और अगर मैं प्रेस करूँगा एंड pwd करूँगा तो अभी आप देखें home/del, क्योंकि मैं ऑलरेडी होम फोल्डर में था पहले, तो इसलिए उसने मुझे इधर ही शो करवाया क्योंकि मैं ऑलरेडी होम फोल्डर में था। और अगर मैं रूट फोल्डर में जाना चाहूँ तो आपको पता है रूट फोल्डर के लिए / यूज़ होती है, एंड प्रेस एंटर किया, देन मैंने अपनी डायरेक्टरी चेक की तो देखें सिंपल मैं कहाँ पहुँच गया हूँ अपने रूट फोल्डर में, पहले मैं होम फोल्डर में था। तो इस तरह आप जो है अपने लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं तो ये आपको वापस उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ आप थे। तो ये जो है नेविगेशंस की कमांड है जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, कैसे आप कोई भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट करेंगे, व्यू करेंगे, कॉपी, मूव एंड डिलीट करेंगे इन द लिनक्स सिस्टम। सबसे पहले अगर कोई भी आप न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यूज़ होगी mkdir command, and then the name of the folder, like here I keep the folder name is lecture 1 and enter and ls। अब यहाँ पे देखें उसने मुझे ये फोल्डर जो lecture 1 है ये क्रिएट हो गया, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, पहले ये फोल्डर नहीं था। अब जो मैंने mk मेक डायरेक्टरी की कमांड चलाई है तो मेरा ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। और अगर आप चाहते हैं नेस्टेड फोल्डर बनाना तो फिर आप कैसे नेस्टेड फोल्डर कैसे बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी -p के साथ आप, और नेक्स्ट लेट्स सपोज फोल्डर 1 इज a, नेक्स्ट फोल्डर इन साइड द फोल्डर a is p and inside the folder b is folder c and press enter ls। यहाँ पे आपको a फोल्डर नजर आया, मैं अगर a फोल्डर में गया और मैंने यहाँ ls किया तो इसके अंदर b फोल्डर क्रिएट हुआ, और अगर मैं b फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे आपको c फोल्डर डिस्प्ले हो गया। इस तरह आप जो है अपने नेस्टेड फोल्डर भी बना सकते हैं। अब मैं बैक अपने होम फोल्डर में आ गया हूँ यहाँ पे, एंड अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कोई भी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो टच यूज़ करते हैं, टच देन द फाइल नेम, लेट्स सपोज hello.py इज द फाइल नेम, .py इज द एक्सटेंशन एंड hello इज द नेम एंड टच। अगर यहाँ पे मैं ls करूँगा, यहाँ पे देखें hello.py जो फाइल है वो क्रिएट हो गया और ये एक एम्प्टी फाइल है। अगर मैं देखना चाहूँ इसमें कुछ है या नहीं तो मैं cat कमांड यूज़ करता हूँ, cat एंड देन
हेलो डॉट पाई फाइल नेम, और ये देखें यहाँ पे मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस फाइल के अंदर कुछ था ही नहीं। सो अगर तो आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं और इसमें कुछ राइट करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, नैनो नैनो कमांड से आप इसको ओपन कर सकते हैं। नैनो हेलो डॉट पाई, अगर आपने क्रिएट नहीं की होगी तो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, और फिर इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस किया, देन मैंने इंटर प्रेस किया, एंड देन कंट्रोल एक्स प्रेस किया, तो मैं उसे बैक आ गया। पहले फाइल मेरी सेव हुई, कंट्रोल ओ एंड इंटर प्रेस करने से कंट्रोल एक्स किया तो मैं उसे बाहर आ गया। और अगर मैं अब कैट की कमांड चलाऊं तो कैट हेलो डॉट पाई एंड इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे वेलकम लिखा आ गया। मीन उस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी उसके अंदर है, उसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, और आपको कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो आप कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं? आप लेट्स सपोज कहते हैं लेस हेलो डॉट पाई, तो यहाँ पे देखें आपको अभी तो इसके अंदर इतना टेक्स्ट नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर टेक्स्ट होता तो आपको ये लेस करके दिखाता, उसका फाइल जो टेक्स्ट है वो कम करके दिखाता। अगर इससे आपने बाहर आना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आप प्रेस करेंगे तो आप इस फाइल से बाहर आ जाएंगे। एंड द नेक्स्ट कमांड इज द हेड। अगर आप टॉप की 20 लाइंस किसी भी फाइल की देखना चाहते हैं तो आप क्या क्या लिखेंगे, हेड की कमांड यूज करेंगे, एंड -20 जब आप देखेंगे तो आपको 20 लाइंस ही शो होंगी। एंड देन आप जो है अपनी फाइल का नेम, क्योंकि अभी एक ही फाइल हमारे पास है तो ये लिखते हैं, तो इसने अभी क्योंकि 120 लाइंस तो है ही नहीं उसमें, अगर 20 लाइन से अबव होती तो फर्स्ट 20 लाइन, इसी तरह अगर आप टेल करते तो आपको लास्ट जो लाइंस हैं वो डिस्प्ले होती। उम्मीद है जो है आपको साथ साथ समझ आ रहा होगा। और अगर आपको कोई लाइव चेंजेस फाइल के अंदर हो रही हैं वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेल -F जो है कमांड यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है उस फाइल का नाम, यहाँ पे एक लॉग फाइल का नाम है, तो ताकि कोई भी लॉग में अपडेशन हो तो आपको वो लाइव अपडेशन जो है वो आपको नज़र आती रहे। तो ये जो है फाइल्स को क्रिएट करने की और फाइल्स को व्यू करने की और उसके अंदर डाटा लिखने की कुछ कमांड्स हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सीपी की कमांड यूज़ करनी होगी। एंड सीपी की कमांड कैसे, सीपी अब जिस फाइल को कॉपी करना है, लेट्स सपोज मेरे पास फाइल कौन सी है, यहाँ पे हेलो डॉट पाई, हेलो डॉट पाई, और मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, उसका नाम हो जाए बैकअप डॉट पाई, एंड प्रेस इंटर किया तो वो मेरी फाइल कॉपी होगी। कैसे पता चला, एलएस किया, यहाँ पे देखें हेलो डॉट पाई पहले थी, अब बैकअप डॉट पाई भी हमारे पास फाइल आ गई है। जैसे ही मैंने इसको चेक किया इसके अंदर डाटा तो देखें वही वेलकम, मीन सेम फाइल जो थी हेलो डॉट पाई कॉपी हुई और उसका नाम कॉपी होके बैकअप डॉट पाई हो गया। और अगर आप जो है इसको किसी और फोल्डर में कॉपी करना चाहते थे तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, आप लिखते कॉपी की सीपी -R एंड देन द फोल्डर नेम, आप किस फोल्डर में जाना चाहते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास लेक्चर 1 का फोल्डर है, एंड देन यहाँ पे मैंने किया लेक्चर 1 का फोल्डर जो है, या फिर हाँ, लेक्चर 1 का फोल्डर कॉपी किया मैंने। अगर आप एक इंटायर फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो लेक्चर 1 का फोल्डर कॉपी हो जाए, ये लेक्चर 1 का, अब ये कॉपी हो के इसका नाम मैं लेट्स सपोज रखता हूँ यहाँ पे स्पेस एंड लेक्चर 1, एंड इंटर किया एंड एलएस किया। यहाँ पे देखें पहले लेक्चर 1 भी है और LECT 1P, ये अब यही फोल्डर कॉपी होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप एक इंटायर फोल्डर भी कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए MV की कमांड यूज़ होती है। पहले ओल्ड फाइल का नेम, देन जो है आपका न्यू फाइल का नेम। लेट्स सपोज हमारे पास
हेलो डॉट पाई की जो फाइल है इसको रीनेम किया मैंने हेल डॉट पाई के नाम से एंड ls किया, तो आप देखें यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो रीनेम हो गई है। इसी तरह आप जो है मूव कर सकते हैं फाइल टू अनदर फोल्डर। हाउ? आप mv लिखेंगे, मूव हो रही है फाइल कौन सी, हेल डॉट पाई, नेक्स्ट जो है आपका वो फोल्डर आ जाएगा। लेट्स सपोज आप जो है होम फोल्डर के आगे एक हमारा फोल्डर है, होम फोल्डर में कौन सा फोल्डर, लेक्चर 1 के नाम से। सो लेक्चर 1 के नाम से, तो इस फोल्डर के अंदर जाके कॉपी हो जाए। जैसे मैंने इंटर किया और मैंने मूव हुई, तो फाइल मूव हुई तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। हेल डॉट पाई की फाइल यहाँ पे नहीं है, मैं गया उस फोल्डर में लेक्चर 1 में, और यहाँ पे अगर मैंने ls किया तो यहाँ पे देखें वो हमारी फाइल कॉपी होके यहाँ पे आ गई थी, बल्कि सॉरी मूव होके यहाँ पे आ गई थी। कॉपी नहीं बल्कि हमने इसको मूव किया था। तो इसी तरह अगर आप इस फाइल को रिमूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आप करेंगे rm कमांड यूज़ होगी रिमूव करने के लिए, देन फाइल नेम हेल डॉट पाई एंड इंटर देन ls। तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। तो इस तरह आप जो है अपनी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप इंटायर फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं वो भी परमानेंटली, तो आप rm लिखेंगे माइनस और f एंड देन द फोल्डर नेम। कौन सा फोल्डर है हमारा यहाँ पे जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज जो कॉपी किया था LECT1 के नाम से, उसको इंटर किया तो ls। अब वो फोल्डर जो है हमारे पास वो रिमूव हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। तो आपने बी केयरफुल रहना है जब भी कोई फाइल रिमूव करने लगे, तो क्योंकि लिनक्स के अंदर कोई रिसाइकल बिन नहीं है। तो एक तो जब भी कोई फाइल बनाए उसकी बैकअप फाइल लाजमी क्रिएट करें किसी और फोल्डर के अंदर। सेकंड, जब भी आप कोई भी फाइल रिमूव करने लगे तो बी केयरफुल कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि रिसाइकल भी नहीं होगी, आप उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारी सम कमांड्स हैं वो सर्च एंड फाइंड की हैं। अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह सर्च करते हैं। कैसे? फाइंड कमांड से। पहली चीज़ है फाइंड कमांड से। अब फाइंड कमांड्स क्या करती है, फाइल्स को बाय नेम हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फाइंड ऑल डॉट पाई फाइल्स इन द करंट फोल्डर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ आपको, फाइंड मीन फाइंड करेगी, डॉट मीन इन दिस फोल्डर, एंड अब मैं उसे कह रहा हूँ कि बाय नेम मैं जो है इस फाइल को सर्च करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको नेम दे दूंगा। अब नेम क्या है, स्टैरिक डॉट पाई लिखा है। स्टैरिक मीन होता है ऑल, मीन ऑल फाइल्स डॉट पी वाई, जिनकी एक्सटेंशन क्या है पाइथन मीन डॉट पी वाई है, वो फाइल्स मुझे यहाँ पे सर्च करके दो। जैसे मैंने इंटर किया तो मुझे मेरे पास बैकअप डॉट पाई की फाइल आ गई, और उसके बाद एक और फाइल मेरे पास आई। इस फोल्डर में एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये फाइल रीड कॉन्फिग डॉट पाई की पड़ी है। तो दो फाइल्स मेरे कंप्लीट सिस्टम के अंदर मुझे मिली हैं डॉट पाई एक्सटेंशन की। तो इस तरह आप किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये अब कहाँ सर्च हुआ है, मेरे होम फोल्डर के अंदर, जहाँ पे मैं था होम फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स थे वहाँ पे। और लाइक अगर रूट फोल्डर्स के अंदर, क्योंकि रूट फोल्डर होम फोल्डर से पहले आता है, तो उसके अंदर कोई फोल्डर्स होंगे और उनमें कोई फाइल्स होंगी, तो वो सर्च नहीं होंगी बाय दिस कमांड। और अगर आप वो भी सर्च करना चाहते हैं, देन आप लिखेंगे फाइंड होम मीन स्टैरिक मीन, अब मैं कह रहा हूँ होम फोल्डर सॉरी रूट फोल्डर के अंदर बाय नेम सर्च करेंगे हम कोई भी फाइल जो आप जो जिस भी चीज़ को सर्च करना चाहें। लेट्स सपोज मैं अगेन यही सर्च कर लेता हूँ, डॉट पाई एक्सटेंशन के नाम की अगर कोई फाइल है, तो ये इतनी ज़्यादा फाइल्स की जो फाइल्स हैं वो मुझे, ये इतनी ज़्यादा फाइल्स मेरे रूट फोल्डर में पड़ी थी जो मुझे सर्च होके अभी भी आप देखें यहाँ पे आई जा रही हैं। तो इतनी ज़्यादा फाइल जो हैं जो अब इसको अगर मैंने रोकना है तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया,
तो ये ऑटोमेटिकली इसने फाइंड करना स्टॉप कर दिया। अब आप देख सकते हैं इन सब फाइल्स की एक्सटेंशन जो है डॉट पी वाई डॉट पी वाई डॉट पी वाई है। मीन जितनी भी फाइल्स थी डॉट पी वाई एक्सटेंशन की वो सारी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट अगर आपने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने जो फाइल्स हैं उनको सर्च किया है। और अब अगर आप कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं किसी भी फाइल के अंदर, तब आप उसको कैसे सर्च करेंगे? उसके लिए कमांड यूज होती है GREP, ग्रिप कमांड यूज होती है हमारे पास। तो कैसे यूज होगी, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रिप। नेक्स्ट जो चीज़ मैं सर्च करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं सर्च करना चाहता हूँ वेलकम वर्ल्ड। नेक्स्ट जिस फाइल में मैं सर्च करना चाहता हूँ फाइल नेम इज बैकअप डॉट पाई। अब बैकअप डॉट पाई के अंदर जहाँ पे वेलकम लिखा है वो मुझे दिखा है, तो उसने कहा जी मुझे वेलकम फाइंड हो गया है, तो इसलिए उसने मुझे वेलकम डिस्प्ले किया। अगर मैं यहाँ पे वेलकम की जगह कुछ और लिख देता और इंटर करता, तो उसने ये कहा कि ये जो रेड है ये डिस्प्ले हुआ है, मतलब ये मुझे फाइंड हो गया है। और साथ में ई जो है वो वाइट कलर में है, मतलब ये मैंने सर्च ही नहीं किया था। लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज़ मैं सर्च करता हूँ जो उसमें है ही नहीं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो, इंटर किया तो आप मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ उस फाइल के अंदर है ही नहीं। अगर आप जो है वो किसी फोल्डर के अंदर फाइल्स को सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ग्रिप की कमांड से माइनस और एंड देन आप लिखेंगे इंपोर्ट टॉर्च एंड स्पेस एंड देन डॉट, डॉट मीन ऑल। तो ये देखें इस फोल्डर के अंदर जितने भी क्या हमारे पास फाइल्स होती हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। तो इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल थी नहीं, तो इसलिए उसने मुझे कोई फाइल डिस्प्ले नहीं कराई। नेक्स्ट इज द ग्रिप माइनस एन डेफ ट्रेन मॉडल डॉट पाई। मीन ये अब माइनस एन जब मैंने साथ लगा दिया अपनी कमांड पहली कमांड के, इन दिस कमांड जब मैंने ग्रिप के साथ माइनस एन लगाया, तो अब ये क्या करेगा इस फाइल के अंदर जहाँ पे मुझे वेलकम मिलेगा उसका लाइन नंबर भी मुझे असाइन रिटर्न करेगा। तो लाइन 1 जो है उस पे मुझे ये चीज़ जो है वो फाइंड हुई है। तो अगर आप लाइन नंबर भी चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर किस जगह ये मिल रहा है, तो माइनस एन जब आप सा लिखेंगे तो लाइन नंबर भी हमारे पास आएगा। और अगर हम जो है चाहते हैं कि ये केस सेंसिटिव सर्च करे, वेलकम इन लेटर केस में हो, स्मॉल केस में हो, या सम लेटर जो है वो अपर केस में एंड सम लेटर जो है वो स्मॉल केस में हो, तो आप क्या करेंगे? माइनस एन की जगह आप माइनस आई लिख देंगे लाइक दिस। अगर मैं माइनस आई यहाँ पे लिखूंगा और डब्ल्यू को कैपिटल कर दूंगा, इंटर करूंगा, तो तब भी मुझे ये रिटर्न हुआ, क्योंकि अब ये केस सेंसिटिव सर्च करेगा। जहाँ पे वेलकम हुआ रिटर्न आएगा। तो इस तरह आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल्स कैसे सर्च करते हैं? लेट्स सपोज उसने कोई लॉग फाइल है, उसमें उसका कोई एरर आया है, तो अब एरर उसे नहीं पता कि एरर किस नाम से आया है। एरर नाम से आया है, एक्सेप्शन नाम से आया है, या फेल्ड नाम से आया है। तो वो कैसे सर्च करते हैं? वो ग्रिप की कमांड ही को यूज करते हैं एंड माइनस आई मीन केस सेंसिटिव यूज करते हैं। देन आप लेट्स सपोज एरर, आपको पता है एरर नाम से को आ सकता है एरर, या फिर मीन और कोई और नाम नेम हो सकता है। तो और को डिस्प्ले करने के लिए आपको बैक स्लैश एंड देन द पाइपलाइन, मीन दिस इज द पाइपलाइन साइन। सो जब आप ये मिला कर लिखेंगे तो इन दोनों साइन का मतलब होगा और यहाँ पे अगर आप सेकंड वर्ड एरर नॉम नेम से और एक्सेप्शन नाम से और आपका जो है वो फेल्ड के नाम से कुछ भी मिले, इन विच फाइल,
जो भी आप फाइल जिसमें आप सर्च करना चाहते हैं, मेरे पास अभी एक ही फाइल है, तो बैकअप डॉट पाइथन आप इंटर करते हैं तो मुझे तो कुछ मिला नहीं क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। तो आप इस तरह ये प्रोफेशनल जो है वो चीज़ों को सर्च करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं वेलकम के नाम करता हूँ तो इंटर, ये देखें अब वेलकम मुझे मिल गया। इनमें से कुछ भी उसको फाइंड होता तो वो मुझे दे देता, उसको वेलकम मिला है तो उसने मुझे वेलकम रिटर्न कर दिया। तो इस तरह आप जो है किसी भी फाइल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड्स आर द प्रोसेस एंड मैनेज रनिंग प्रोग्राम। जितने भी आपके प्रोग्राम रन कर रहे होंगे उनको मैनेज करने के लिए, या प्रोसेस में आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जब भी कोई पाइथन का स्क्रिप्ट रन होता है तो साथ ही जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैं लेट्स सपोज कोई भी एक पाइथन का स्क्रिप्ट रन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक पाइथन, अब मेरे पास कोई फाइल ट्रेन डॉट पाई है नहीं जिसको मैं रन करूं, तो लेट्स सपोज ट्रेन डॉट पाई, अब मुझे एरर क्या आएगा यहाँ पे देखें कि ट्रेन डॉट पाई की हमारे पास फाइल ही नहीं है, हम रन क्या करें। तो सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी नैनो के नाम से, एंड ट्रेन डॉट पाई, या हमारे पास जो है वो ये बैकअप डॉट पाई की ही फाइल है, बैकअप जो फाइल है वो पाइथन की ही है। तो मैंने कहा पाइथन 3 जो है उसको का रन करें हमारे पास बैकअप डॉट पाई। तो ये हमें रिटर्न हुआ क्योंकि उसके अंदर सिंपल वेलकम है, कोई पाइथन का कोड ही नहीं है उस फाइल के अंदर। तो अगर वहाँ पे हम कोई पाइथन का कोड लिखें नैनो बैकअप डॉट पाई एंड वी राइट डाउन हियर द प्रिंट स्टेटमेंट कंट्रोल ओ इंटर एंड कंट्रोल एक्स। यहाँ पे देखें अब जब मैंने उस पाइथन 3 बैकअप डॉट पाई का फाइल चलाई, मैंने वो स्क्रिप्ट चलाया, वो प्रोसेस चलाया पाइथन का जो है, देन क्या हुआ वेलकम उसका कोड जो है वो उस फाइल से रन हुआ और मुझे रिटर्न हुआ प्रिंट ओके वेलकम, क्योंकि हमने उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी और वेलकम को डिस्प्ले करवाया था। तो इस तरह आप कोई भी पाइथन का स्क्रिप्ट अगर आप रन करना चाहें तो आप रन कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी स्क्रिप्ट भी अगर आप कोई शेल जो है स्क्रिप्ट रन करना चाहें तो वो भी रन कर सकते हैं, बाकी जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि पाइथन का स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं। अब हम है कि अगर मैं चाहता हूं कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि बैकएंड में रन होता रहे, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास यूराइड सर्विस, तो वो हमारी सर्विस बन जाती है। तो अगर बैकएंड पे मैंने उसको रन करना है तो सॉरी पाइथन and then the file name, let's suppose python backup.py and space and sign इंटर किया। अब जो है 608 नंबर हमें रिटर्न हुआ है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक हर प्रोसेस के रिगार्डिंग एक आईडी रिटर्न होती है, उसके रिगार्डिंग ये हमारा, अब ये देखें ये स्क्रिप्ट चल रहा है अभी रिटर्न नहीं आया, क्या क्या हो रहा है बैकएंड पे हमारा स्क्रिप्ट रन हो रहा है, क्लोज नहीं हुआ। तो इस तरह आप किसी भी स्क्रिप्ट को बैकएंड पे रन कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल सी किया, देन आप क्विट होके हमारा वो प्रोसेस बंद हुआ और हम बाहर आ गए। और अगर आप चाहते हैं कि ये कब तक रन होगा, जब तक मैंने मतलब आप इस स्क्रिप्ट कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि फॉर एवर अगर आप क्विट भी कर मतलब आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद भी कर दे रन करता रहे, तब आपको यहाँ पे जो नो हब को यूज करना पड़ेगा। नो हब पाइथन 3 ट्रेन डॉट पाई पाइथन फाइल नेम एंड देन एंड साइन, ये रन एंड कीप गोइंग इवन इफ यू डिस्कनेक्ट, अगर आप डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं तो आपका ये प्रोसेस जो बैकएंड पे रन होता रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है PSAUX, मीन्स ये आपको शो करेगी जितने भी आपके प्रोसेस रनिंग में है। अगर मैं यहाँ अगर कोई प्रोसेस हमारा यहाँ रनिंग में हुआ तो ये हमें रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PSAU स्पेस AUX इंटर, ये जो सारे प्रोसेस हैं ये हमारे बैकएंड पे
रन हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमें रिटर्न। अगर आप चाहते हैं कि कोई रनिंग प्रोसेस है तो आपको शो हो, तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं फिल्टर करना कि अगर कोई पाइथन का रनिंग प्रोसेस है तो वो सिर्फ रिटर्न हो, बाकी कोई रिटर्न ना हो, तो आप कैसे करेंगे? आप करेंगे PSAUX स्पेस पाइपलाइन। पाइपलाइन यूज की आपने, अब आपने यहाँ पे ग्रेप कमांड यूज की। ग्रेप कमांड आप यहाँ पे लिखा पाइथन, तो जितने पाइथन के स्क्रिप्ट रन हो रहे होंगे वो हमें रिटर्न होंगे। तो यहाँ पे हमारे ये पाइथन के 2 स्क्रिप्ट रन हो रहे थे जो हमें रिटर्न हुए हैं। तो इस तरह आप जो है फिल्टर कर सकते हैं चीज़ों को। और अगर आप चाहते हैं कि व्यू करना सीपीयू एंड मेमोरी को, आप यहाँ पे लिखेंगे टॉप। जैसे ही आप टॉप लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी मेमोरी यूज़ हो रही है वो सारा डिस्प्ले होगा। अगर आपने क्विट करना है तो आप जो है वो कंट्रोल C करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे, सिंपल। और अगर आप चाहते हैं कि बेटर वर्जन ऑफ टॉप, अगर आप चाहते हैं तो एच टॉप आपको यूज़ करना पड़े, लेकिन एच टॉप को इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, सूडो कमांड के साथ। अभी आपको करके दिखा, सूडो apt इंस्टॉल एच टॉप। तो ये आपका जो है, आप यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे सूडो कमांड का जो आपका था, तब ये आपका जो है वो ये इंस्टॉल, जैसे ही मैंने उसको पासवर्ड देके इंटर किया तो आपका जो है वो एच टॉप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे उसने परमिशन ली, जैसे मैंने यस किया तो उसने यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपका कोई प्रोसेस रन कर रहा है और अगर आप उसको जो है वो स्टॉप करना चाहते हैं, तब आपको क्या है, किल कमांड यूज करना पड़ेगी। किल देन प्रोसेस आईडी। मैंने आपको बताया था जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके रिगार्डिंग की एक आईडी उसको असाइन होती है। जब आप यहाँ पे आईडी नंबर लिखेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आईडी नंबर किल लिखेंगे तो वो आपका प्रोसेस जो है वो किल हो जाएगा। दैट्स इट। देन अगर आप जो है फोर्स स्टॉप, मतलब वो फिर भी अगर आपका प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि फोर्स स्टॉप कि वो जो है स्टॉप हो ही हो, देन आप जो है -9 अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या करती है, किल कमांड उसको फोर्स करती है और उसको फेल कर देती है रन होने में, उसको बिल्कुल स्टॉप कर देती है। और अगर आपके पास प्रोसेस आईडी नहीं है और आप उसको बाय नेम सर्च करके किल करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, देन आप यूज करेंगे पी किल -f इन एफ स्ट्रिंग। देन आप यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखेंगे तो इससे आप उसको बाय नेम भी जो है वो प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, सिंपल यहाँ तक। नेक्स्ट इज द concept of the pipeline. The second last concept is pipeline and redirection. ये क्या करता है, ये जो है इसमें हम 2 या मोर देन 2 जो है कमांड्स एट अ टाइम रन करते हैं और एक कमांड की आउटलाइन जो सॉरी आउटपुट जो है वो दूसरी कमांड को असाइन करता है। ये दो काम, मतलब एक कमांड पहले रन हुई, उसकी जो आउटपुट आई हमारे पास वो दूसरी कमांड को असाइन हो जाएगी। कैसे? लेट्स डू दिस। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ls-la, दिस इज वन कमांड, ये हमें क्या, सॉरी ls-la, तो इसने हमें रिटर्न की सारी फाइल इन डिटेल। और अब सेकंड थिंग, अगर मैंने यहाँ पे यूज किया ls-la स्पेस पाइपलाइन साइन एंड देन मैंने कहा ग्रिप एंड .py एंड इंटर। अब इसने मुझे क्या किया, पहले इसने लिस्ट की सारी फाइल, मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड आया, इसकी आउटपुट इसने दी दूसरी कमांड को, उसने ग्रिप की -py, मतलब इसमें अगर कोई .py एक्सटेंशन की फाइल है तो वो हमें रिटर्न हो जाए। तो वहां पे एक फाइल थी backup.py की, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक फाइल रिटर्न हुई है। तो बाय यूजिंग पाइपलाइन आप जो है डिफरेंट कमांड्स को रन करके क्या करता है पाइपलाइन साइन, एक कमांड की आउटपुट दूसरे कमांड को देता है और उसके रिगार्डिंग जो है वो सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसी तरह आप देखें पी एस ऑक्स क्या किया, अभी हमने ऊपर देखा, प्रोसेस
को शो करने के लिए। देन हमने ग्रिप पाइथन, उसमें से देखा कि जो पाइथन के हमारे प्रोसेसेस हैं वो सबसे पहले इसने मुझे सारे रिटर्न किए जितने भी प्रोसेस होंगे, उसमें से मैंने ग्रिप किया, मेन फिल्टर किया, जो पाइथन के हैं सिंपल वो डिस्प्ले होंगे, बल्कि सारे डिस्प्ले नहीं होंगे। देन कैट डाटा डॉट टी एक्स टी एंड डब्ल्यू सी माइनस एल। अब ये हमारे पास एक फाइल है डाटा डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक फाइल है कैट बैकअप डॉट पाई, मैंने इंटर किया, उसके अंदर जो चीज़ थी वो प्रिंट होके आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाइपलाइन साइन से क्या करूँ, डब्ल्यू सी माइनस एल, तो अब देखें 1। अब क्या हुआ, इसके अंदर जितना भी डाटा था कैट्स क्या करता है, डिस्प्ले करता है उस डाटा को। देन कैट बैकअप डॉट पाई फाइल के अंदर जितना डाटा था वो मेरे पास आया इस कमांड के पास। इस कमांड ने क्या किया, डब्ल्यू सी माइनस एल काउंट करता है द लाइन नंबर्स इन दैट फाइल, और मतलब जो टेक्स्ट हो। अब उस टेक्स्ट के अंदर कितनी लाइन थी, एक, इसने मुझे रिटर्न कर दिया 1। सो एक कमांड की आउटपुट दूसरी कमांड के पास गई, उसके रिगार्डिंग वो कमांड रन हुई और उसकी आउटपुट हमें रिटर्न हो गई। तो ये पाइपलाइंस मतलब रीडायरेक्शंस होता है या कंबाइनिंग कमांड्स आप इनको कहते हैं। देन कैट डाटा डॉट टी एक्स टी, देन सॉर्ट एंड या यूनिक, ये क्या करेगी, पहले डिस्प्ले करेगी सारा डाटा इस फाइल का, फिर उस सारे डाटा को सॉर्ट करेगी। सॉर्ट करने के बाद जो उसमें यूनिक मतलब उसको यूनिक बना देगी, जो डुप्लीकेट होगा उसको वो क्या कर देगी, वहां से रिमूव कर देगी, सिंपल। देन इको कमांड क्यों यूज होती है, मैंने आपको बताया था डिस्प्ले करने के लिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके एचओ इको हेलो, तो जैसे इंटर किया हेलो प्रिंट हुआ। मीन इको कमांड यूज होती है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। एक और इसका काम है कि इको कमांड यूज होती है फाइल के अंदर डाटा लिखने के लिए। लेट्स सपोज मेरे पास इको कमांड है ECHO। अब इको कमांड को मैंने बोला मेरी एक फाइल है, फाइल सॉरी एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट है क्या, टेक्स्ट के दिस इज लेक्चर 1 एंड दिस इज माई टेक्स्ट। एंड अब मैं चाहता हूं कि इसको किस फाइल में जाके लिखे, बैकअप डॉट पाई वाली फाइल में, ग्रेटर देन का साइन, देन मैंने उस फाइल का नाम लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा बैकअप डॉट पाई, सॉरी बैकअप डॉट पाई, एंड मैंने इंटर किया और मैंने कहा कैट बैकअप डॉट पाई। अब देखें दिस इज द लेक्चर 1। क्या हुआ, अब ये वाला जो डाटा था वो इस फाइल के अंदर जाके राइट हो गया। यहाँ पे एक चीज नोट की आपने, क्या हुआ, ये डाटा तो राइट हो गया, बट जो पहले डाटा था हेलो, सॉरी पहले डाटा हमारे पास वेलकम था, वो रिमूव हो गया है। तो ये चीज जो है यूज होती है बट डाटा राइट करने के लिए, ओवर राइट करने के लिए, मीन ओके फाइल के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि पुराना डाटा भी रहे, नया जाकर नीचे उसके अंदर ऐड हो जाए, ओवर राइट ना हो, देन आप क्या करेंगे, देन आप करेंगे ये चीज़ कि हम यहाँ पे आएंगे एंड दिस इज लेक्चर 2 लिखेंगे, एंड यहाँ पे आपने 1 ग्रेटर साइन यूज किया है ना, वहाँ पे आप डबल ग्रेटर साइन यूज करेंगे। देन आप जब इंटर करेंगे और ये कमांड जब आप रन करेंगे तो देखें यहाँ पे दिस इज लेक्चर 1, दिस इज लेक्चर 2। अब चीज़ ओवर राइट नहीं हुई बल्कि वहाँ पे जाके राइट हुई है। तो इस तरह आप जो है किसी भी फाइल के अंदर डाटा जो है वो लिख सकते हैं। पहले ओवर राइट हुआ, अगर आप सिंगल साइन यूज करेंगे, डबल साइन यूज करेंगे, ओवरराइड नहीं होगा बल्कि उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। देन अगर आप एल एस माइनस एल ए ग्रेटर देन लॉग टेस्ट करते हैं तो ऐड फाइल लिस्ट टू लॉग, ये क्या करती है, आपकी फाइल को लॉग में लिस्ट कर देगी, सिंपल। अगर आप जो है यहाँ पे पाइथन ट्रेन डॉट पाई एंड ग्रेटर देन ट्रेनिंग डॉट लॉग एंड 2 ग्रेटर देन एंड 1, ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे ये काम हो रहा है कि सबसे पहले पाइथन 3 ने एक फाइल चलाई ट्रेन डॉट पाई की, ट्रेन डॉट पाई की फाइल रन हुई। अब ये चीज़ ओवरराइट तो नहीं हो रही बल्कि डबल साइड है, मीन चीज़ ऐड हो रही है। कहाँ पे, एक और फाइल बनी ट्रेनिंग डॉट लॉग के नाम से, मीन ट्रेनिंग डॉट लॉग के अंदर क्या चीज़ ऐड हुई,
टू ग्रेटर देन एंड वन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आउटपुट आए किसकी, इस फाइल की, और कोई भी एरर आए, दो चीजें, एक आउटपुट एक एरर, वो किस फाइल में जाके लिख दो, इस फाइल में। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ आपके सामने नैनो बैकअप डॉट पाई, ओके। और मैं इस सारे डाटा को किया डिलीट, और मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम। ये प्रिंट स्टेटमेंट, इसकी आउटपुट क्या आएगी? वेलकम। अब मैं यहाँ पे कोई एक एरर रन कर देता हूँ, ये एक एरर है, मैंने कुछ भी लिखा जिसका कोई पाइथन में मीनिंग बनता ही नहीं है। मैंने उस फाइल को कंट्रोल ओ से सेव किया, इंटर से, एंड देन एक्स, कंट्रोल एक्स से बाहर आ गया, और मैंने क्या रन किया, यहाँ पे इस फाइल को रन किया पाइथन 3 बैकअप डॉट पाई। जैसे मैंने एंटर किया, वेलकम आया, नेक्स्ट एरर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन एक और फाइल बनाई ट्रेन डॉट लॉग के नाम से, और मैंने यहाँ पे टू ग्रेटर देन एंड वन इंटर। अब क्या हुआ? अब ये सारी चीज जो मुझे यहाँ प्रिंट हुई थी, ये सारी चीज इस फाइल के अंदर जाके सेव हो गई है। जादू देखना है आपने तो दिखाते हैं आपको। मैं कहा गेट ट्रेन डॉट पाई एंड इंटर, तो ये देखें, सॉरी, ट्रेन डॉट लॉग है। सो जादू थोड़ा गलत होने लगा था, देखें आपको ये सारी चीज जो है डिस्प्ले हुई कहाँ, इस फाइल से। कहाँ सेव हुई थी? इस फाइल में। कैसे? इस कमांड से। उम्मीद है जादू पसंद आया होगा आपको ये। तो ये ही जादू जो है आप लोगों ने भी करने हैं। यही जादू कैसे होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन कमांड्स की, इन कमांड पे आप ग्रिप करेंगे, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। लिनक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स लुक्स स्कैरी, बट व्हेन यू डू प्रैक्टिस, व्हेन यू यूज ऑन डेली बेसिस, देन इट फील नेचुरल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने विंडो जो आप चलाते हैं, रन करते हैं, या मैक यूज़ करते हैं, तो आपको पहले ये भी चलाना नहीं आता था। आपने क्या किया? आपने इसको मतलब चलाना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये भी आपको स्कैरी लगता था, कैसे यूज़ करना है, क्या होगा, कैसे। जब आपने यूज़ करना स्टार्ट किया, आप यूज़ करते रहे, तो अब आपके लिए ईजी हो गया। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, आप कर सकते हैं। लाइक दिस सेम थिंग इज़ हेयर। हमारा लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट का है। अगर आपको ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपने अभी हमने ऊपर एक इंस्टॉल किया भी था सॉफ्टवेयर सूडो कमांड एपीटी से। और सूडो एपीटी अपडेट क्या करता है, ये अवेलेबल सॉफ्टवेयर की लिस्ट जो है वो रिफ्रेश करता है, हमें रिटर्न करता है सूडो एपीटी इंस्टॉल, देन द सॉफ्टवेयर नेम जो भी आपने इंस्टॉल करना है, सूडो एपीटी रिमूव। अगर आपने उस इंस्टॉल किए हुए चीज़ को रिमूव करना है, सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, तो आपको ये कमांड यूज करनी होगी। अगर आपने किसी भी लाइब्रेरी या पैकेज को इंस्टॉल करना है पाइथन के, पिप इंस्टॉल एम एल फ्लो इज द नेम ऑफ दैट पाइथन लाइब्रेरी। सो आप पिप कमांड से, पिप इंस्टॉल से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिप इंस्टॉल से एम एल फ्लो इंटर करेंगे, तो उसने कहा कि पिप नॉट फाउंड। इट्स मीन दैट पिप जो है अब इंस्टॉल नहीं है। हम कहेंगे एपीटी, सॉरी सूडो एपीटी को इंस्टॉल करने को कहेंगे पिप। जैसे इंटर करेंगे वो पासवर्ड मांगेगा, जैसे ही पासवर्ड देंगे इंटर करेंगे, तो वो अभी वो क्या कर रहा है, अनएबल टू लोकेट द पैकेज ऑफ पिप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं सूडो एपीटी अपडेट। पहले हम अपने एपीटी को अपडेट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम अपने पिप को इंस्टॉल करेंगे बाय एपीटी। देन पिप से हम अपनी जो भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना चाहें वो इंस्टॉल कर लेंगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे सूडो एपीटी इंस्टॉल पाइथन एंड द पिप 3 एंड प्रेस द इंटर। ये देखें हमारे पास जो है अभी भी पाइथन पिप 3 भी इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो लोकेट नहीं कर पा रहा इस पैकेज को।
तो हम लिखते हैं sudo apt install pip3। sudo apt install python 3 and pip -y मीन yes, ऑल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो yes। तो ये अब हमारा जो है पिप को इंस्टॉल कर रहा है python 3/pip। तो इस तरह उसने इस जो है को सॉफ्टवेयर को लोकेट किया और उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे जब लिखेंगे पिप इंस्टॉल ml फ्लो एंड इंटर करेंगे तो यहाँ पे सॉरी इंस्टॉल लिखना था हमने, मिस्टेक की, इंस्टॉल एंड इंटर किया तो ये देखें उसने हमारे पास error is externally managed environment, this environment is externally managed to install okay python 3। यहाँ पे हमें उसने ये बोला है कि आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें तब आप इसको इंस्टॉल करें, ये आपके लिए सेफ़ होगा। लेकिन अगर आप इसको फिर भी फुली फोर्सफुली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो पिप इंस्टॉल ml flow माइनस माइनस ब्रेक सिस्टम पैकेजेस, जैसे आप इंटर करेंगे तो ये उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। जो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि आपका ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए कोई भी एरर क्रिएट ना करे। क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपका एक प्रोजेक्ट जो यूज़ कर रहा है सॉरी पाइथन का वर्जन 3 और दूसरे का जो यूज़ कर रहा है पाइथन का वर्जन 3.1 यूज़ कर रहा है, तो अगर आपके ग्लोबली इंस्टॉल होंगे तो वो एक दूसरे के लिए इशू क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे हर एक प्रोजेक्ट का अलग, तो एक प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट में उसका अलग पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होगा, दूसरे में अलग, तो वो एक दूसरे के लिए जो है वो मर्ज नहीं होंगे। तो इस तरह आप कोई भी पैकेज जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई फाइल बनाई हुई है एक रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर डिफरेंट नाम्स हैं, लिस्ट है ऑफ द फाइल्स, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल -r देन फाइल नेम एंड पिप इंस्टॉल पिप लिस्ट विच रिटर्न यू द इंस्टॉल्ड व्हाट इज इंस्टॉल्ड। सो ये लिस्ट हमें रिटर्न करेगा। एंड पिप शो ml फ्लो, तो ये डिटेल हमें रिटर्न करेगा ml फ्लो की। तो अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे और उसको एक्टिवेट कैसे बनाएंगे करेंगे, तो ये लास्ट आज का जो है हमारा टॉपिक है। तो अभी मैं आपको एक पाइथन का एक इन्वायरमेंट बना के दिखाता हूँ। अगर आप कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, पाइथन एंड देन आप लिखेंगे -m देन VENV, यहाँ तक है वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। तब अब आप लिखेंगे उस इन्वायरमेंट का नाम जो आप लिखना चाहते हैं। मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ MyENV। तो जैसे मैंने एंटर किया तो पाइथन नॉट फाउंड, डिड यू मीन द python 3, या इट्स मीन द python 3, here write down the python 3 and then press the enter। तो ये जो है हमारे पास यू मी नीड टू सूडो कमांड, क्योंकि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो आपके लिए सूडो कमांड भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। एडमिन की परमिशन रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो आप यहाँ पे जब इंटर करेंगे देन आप देखेंगे द वर्जन वर नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली बिकॉज द इंश्योर पिप इज़ नॉट अवेलेबल। तो वो कह रहा है हमारे पास भी apt इंस्टॉल python 3.12 इन्वायरमेंट। ओके, वो कहता है जो हमारे पास पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है वो अपडेटेड नहीं है। तो आप पहले उसको अपडेट करेंगे देन आप जो है वहाँ पे अपना पाइथन का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे। तो अगर मैंने ये कमांड रन करें यहाँ पे तो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हुआ। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी देन हम इसका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। लेट्स सी। सो हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। देन अब हम क्रिएट करेंगे python 3 -m-v-e-n-v एंड द नेम ऑफ माई इन्वायरमेंट एंड जैसे इंटर किया सो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ये इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट को अगर मैंने एक्टिवेट करना है तो मैं लिखूँगा सोर्स
then name of my environment, nev, and then bin and activate. इससे आप देखें यहाँ पे माई ई एन वी स्टार्ट में लिखा है, इसका मतलब अभी मैं जो है वो अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में, अब यहाँ पे जो भी मैं चीज़ इंस्टॉल करूँगा वो ग्लोबली मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगी, बल्कि इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होगी। जब मैं इस इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करूँगा तो वो बाहर मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। जो भी चीज़ मैं इधर इंस्टॉल करूँगा या जो भी सिस्टम मेरे ग्लोबली सिस्टम पे चीज़ इंस्टॉल होगी वो मैं इस इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए आपने जो भी प्रोजेक्ट करना है उसके लिए अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, ताकि ना वो किसी के लिए हार्मफुल हो और ना सिस्टम की कोई चीज़ उसके लिए हार्मफुल हो। और अगर आप अभी यहाँ से रिटर्न आना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे डीएक्टिवेट एंड देन प्रेस द इंटर, और यहाँ पे स्टार्ट में देखें ये ख़त्म हो गया है। तो ये था हमारी आज की कमांड्स जो मैंने आपको सारी समझा दी हैं। अब जो आप लोगों का काम है वो है प्रैक्टिस करना है इनकी। सबसे पहली चीज़ तो आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आपने सिंपल नीचे सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करना है। एक अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लिखना है WSL माइनस माइनस इंस्टॉल, एंड जब आप इंटर करेंगे तो आपके सिस्टम पे यूबेंटो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप एक मैक यूज़र हैं देन आपको जो है CMD प्लस स्पेस देन टाइप द टर्मिनल। जब आप टर्मिनल ओपन करेंगे देन मैक इज़ यूनिक्स बेस्ड, सो ऑलमोस्ट ऑल लिनक्स कमांड्स वर्क एग्जैक्टली द सेम। वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पर आप जो है यूज़ कर सकें, क्योंकि मैक्स एक यूनिक्स बेस्ड है हमारे पास। क्योंकि इसलिए मैक्स की सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्स के बैकएंड पे यूनिक्स है काम कर रहा है। यही बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि लिनक्स इस जो है वो सिक्योर है देन द विंडो। तो अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को तो ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं। सबसे पहले जो है सिंपल कमांड जो मैंने आपको बताई थी ये मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपने कंप्लीट करनी है। अगर आपको कोई भी मसला आए तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो आप यहाँ पे बैश, यहाँ पे देखा आपने पाइथन स्क्रिप्ट बनाई थी, यहाँ पे एक बैश की स्क्रिप्ट बनी है, और बैश की स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, इस कमांड को यूज़ करेंगे सिंपल। यहाँ पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया है, जो चीज़ मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी में समझाई थी कि कैसे वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, वो सारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये काम आपने कंप्लीट करना है। देन पाइप एंड रीडायरेक्ट चैलेंज है यहाँ पे आपके लिए। सो ये काम जो है आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये मैं आपके साथ प्रैक्टिस वाला शेयर कर दूंगा, इस तरह आपने इस लेक्चर को कंप्लीट करना है। देन हम जो है वो क्विज पे जाएंगे, रिसोर्सेज पे, एंड देन आपको जो है इस वीक का होमवर्क दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।